ओके, सो ये एक फुटबॉल चैनल होने वाले, फुटबॉल चैनल इन द सेंस दैट मैं इस पे फुटबॉल के बारे में बातें करूँगा बिकॉज फुटबॉल से रिलेटेड बेस्ट चीज़ मैं वही कर सकता हूँ. आई डोंट प्ले दैट वेल बट आई वॉच इट अलॉट. तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. व्हाई एम आई डूइंग दिस? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अगर रिक्रिएशन में कुछ देख रहा होता हूँ, मैं फुटबॉल ही देख रहा होता हूँ, या फिर अपने दोस्तों से मैं फुटबॉल के बारे में बातें कर रहा होता हूँ. तो मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पे, जस्ट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा. Most of it is going to be about the Premier League or about Liverpool, but there's also going to be other content, like other content in the sense that a lot of it will also be coming from Madrid because that's where I started watching my football. मैंने वहीं से अपना फुटबॉल देखना शुरू करा because of Ronaldo and those kind of things. So yeah, so let's hop into the game week as we come from the international break. This international break came at a pretty fortunate time for Liverpool, to be honest, because काफ़ी jerky season का start रहा है, absolutely opposite of what was expected from the team, following the transfer window, the insane transfer window that we had, or the absolutely brilliant season that we had in the league at least. But the current season has been a great fall or a great drop off from what was expected after record breaking signings like Florian Wirtz and Alexander Isak. But thankfully, the international break came at a great time, and the break has gone pretty well. Most of the players, almost सारे ही fit वापस लौट कर आए हैं except for a few misses. Ibu Konate जो कि ट्रेनिंग में आ गए हैं, but he will not be starting most probably. He is in team training. एंड एलिसन जो कि पहले से ही मिसिंग थे, उन्होंने चेल्सी वाला गेम भी मिस किया था और गैलाटासराय वाला भी मिस किया था. ही हैज़ बीन मिसिंग गेम्स, विच इज़ अ बिग मिस. एलिसन इज ऑफ कोर्स अ बिग मिस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द प्लेयर्स हैव कम बैक फिट. सो लियोनी जो कि पहले इंजर्ड हो गए थे वो तो अलग चीज़ है, बट जो प्लेयर्स मतलब सीनियर प्लेयर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं बाकी सब फिट हैं तो वो रहेंगे. सो द इंटरनेशनल ब्रेक केम एट अ प्रिटी फॉर्चुनेट टाइम एंड इट वेंट प्रिटी वेल. जो भी प्लेयर्स गए थे उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ब्रेक में. उन्होंने काफ़ी गोल्स मारे, अपनी टीम्स को हेल्प करी हैं मेजर वे में. स्पेशली जैसे कि मो साला है, उन्होंने 2 गोल्स मारे जिबूटी के अगेंस्ट एंड ही गॉट इजिप्ट क्वालिफाइड टू द वर्ल्ड कप, which has happened just for the fourth time in their history. And the 2 times out of the 4 that have happened because of him, like in the last 8 years. 2022 वाला वर्ल्ड कप उनका मिस हो गया था इजिप्ट का, but now they're back and it's probably going to be Mo Salah's last World Cup, but it's great that he's getting a chance to sign off at the biggest stage, at the biggest tournament in that football has. So it's great. Also, quite fun is the fact that Egypt was the first African nation to ever qualify for the World Cups in 1934. Like, you would not expect Egypt to be one of the powerhouses of football. At least I wouldn't. At least this generation wouldn't. So yeah, they were one of the first nations. They were the first nation from Africa to qualify for the World Cup. And then they qualified again in 1990, but after that थोड़ा सा उनका drought था, and now they're probably gonna get back because they've had Mo Salah for a while, and then now they have a budding superstar in Omar Marmoush. So okay, stepping away from Egypt and Mo Salah, Szoboszlai had a great international break. Cody Gakpo had a brilliant international break. He scored 2 goals and had an assist. Virgil van Dijk scored a goal. Another player that had a pretty good international break and needed a good international break, was Alexis McAllister. He scored 2 goals in Argentina's 6-0 rout of Puerto Rico. He needed that break because उनका start काफ़ी weak रहा है, not up to his usual level, जिस level पर वो खेलते हैं as a controller, finding passes, या फिर कई बार वो लॉन्ग शॉट्स लेते हैं अच्छे, ही गेट्स गोल्स, लेट रन्स करते हैं वो. तो उसमें उनका सीज़न थोड़ा वीक रहा है, बट मे बी दिस हेल्प्स हिम. कई सारे रीजंस हैं उस चीज़ के, अडेप्टिंग टू न्यू प्लेयर्स एंड ऑल्सो कि जैसा कि आर्ने स्लॉट ने आज अपनी यूनाइटेड वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस भी किया कि एलेक्सिस मैकलिस्टर ऑल्सो मिस्ड द प्री सीजन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टूवर्ड स्टार्टिंग द सीजन ऑन द राइट पेस. सो मे बी नाउ दैट ही हैज़ गॉट इन अ फ्यू मिनट्स अंडर हिज बेल्ट, या फिर थोड़ा रेगुलरिटी में वो खेल रहा है, ही रियली वांट्स टू बी कंसिस्टेंट, जो कि वो कई बार कहते नहीं है मैकलिस्टर. कंसिस्टेंट खेलना उन्हें हेल्प करता है, विच हैपन्स विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. So now maybe he gets back to his regular pace, which could be a great thing for him. Then Robertson got an assist. Kirkiz had a nice international break. Alexander Isak also played.
the 2 games in his international break, all 90 minutes, but he didn't score a goal, similar to Florian Wirtz. But Alexander Isak, जैसा कि आर्ने स्लॉट ने एड्रेस भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि now you can judge him fairly, or that now he's on the level that Liverpool need him to be fitness के terms में, which is not something I agree with. मतलब you're 150 million signing up, day one से ही judge होगे, which is fair, but ठीक है, maybe he gets better now, he starts getting into the goals that we know कि वो capable हैं उस तरह की finishing के, उस तरह के goals के, उस तरह के output के, तो वो शायद अब शुरू हो जाएगा. So it has been a pretty good international break for Liverpool, जो कि वो they can be happy about players coming back in form, in high morals, and maybe that translates into a great performance against United at Anfield. So apart from that, कई सारे बड़े fixtures हैं, मतलब कई सारे तो नहीं, but there are a few that you can look out for, especially Crystal Palace playing Bournemouth. Two budding coaches, budding in the sense कि वो सीन में वो अपना नाम अभी रिसेंटली बना रहे हैं कि अच्छा ये भी कोई है, ये भी कोई है, इन ग्लासनर एंड इरावला. So Crystal Palace are coming back from their first defeat in 19 games, which is going to be somewhat of they would want redemption. But Bournemouth have lost just 1 game this season in the Premier League. So it's not going to be easy. But Crystal Palace और Bournemouth दोनों ही अपने games away पर हारी है, and it's away for Bournemouth. It's going to be hosted by Crystal Palace at Selhurst Park. So it's going to be an interesting game. Apart from that, City play Everton. Everton also have lost just 2 games. And they're coming off of breaking Crystal Palace's record. So it's going to be a tough game for City as well. But then they play Everton without Jack Grealish, who has been spearheading their attack in some way. He has been a marquee signing. He has been an outlet, a creative outlet. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होता Everton को, so they use him as that, as an outlet. But City play them without him because he's on loan to Everton from City. So yeah, it might be slightly easier, but yeah. City also have Haaland, so Haaland, of course, he will score. Apart from that, another good game could be Tottenham versus Aston Villa. Tottenham have also lost just once this season, and Aston Villa are regaining form. They have won 4 games on the trot. Aston Villa ने अपना सीजन काफ़ी poorly start किया था compared to what someone would expect, कि वो जिस तरह से उन्होंने पिछला सीजन खेला. ऑफ कोर्स वो चैम्पियंस लीग में मिस आउट कर गए, बट दे हैड अ नाइस सीजन. उन्होंने अच्छी फुटबॉल खेली. दे वर फाइंडिंग सोल्यूशंस, कि वो बिल्ड कर रहे थे चीज़ें. एंड उनाई एमरी हैज़ बीन बिल्डिंग टूवर्ड्स समथिंग. वो पिछले सीजन यूसीएल में भी काफ़ी अच्छा गए थे. दे हैड अ ग्रेट गेम अगेंस्ट PSG, उन्होंने काफ़ी टेंस कर दिया था मैच. काफ़ी क्लोज आ गए थे वो एक टॉपल करने में, PSG जो इवेंचुअल विनर्स थे उन्हें. बट इवेंचुअली उनके लिए नहीं वर्कआउट करा. यूसीएल भी और प्रीमियर लीग में भी चैम्पियंस लीग स्पॉट मिस आउट हो गया. इवन दो 5 थे, वो मिस आउट कर गए वो स्पॉट. बट इस साल यू वुड स्टिल एक्सपेक्ट बिग थिंग्स फ्रॉम देम. वो अभी तो नहीं हो पाया, बट मे बी कि अब 4 विन्स आ गए हैं ऑन द ट्रॉट, सो दैट ट्रांसलेट्स इनटू समथिंग बिगर. बट टॉटनहम वर्सेस एस्टन विला विल बी अ गुड गेम टू वॉच. Apart from that, another team that I have personally really liked watching over the years is Brentford. They have somewhat gained a reputation of giant killers. तो उनके मैचेस देखने में, या उनकी जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स बनाए थे, कुछ इवान टोनी हो गए, यूएन वीसा हो गए, ब्रायन एम्बूमो हो गए, नॉर्गार्ड हो गए, या फिर उनके गोलकीपर राया, ये सब प्लेयर्स इन्हें देखने में एरिक्सन उन्होंने थोड़े दिन के लिए लिया था. तो दे हैव इट्स अ फील गुड क्लब, कि इट फील्स गुड टू सपोर्ट देम. उन्होंने कई बार लिवरपूल को एक टेंस मैच भी ऑफर किया है. 3-3 बड़े ड्रॉज हुए हैं उनके साथ, हाई स्कोरिंग. बट या उनका मैच होने वाला है. दे हैव बीन, वो बड़ी टीम नहीं है, दे आर अ स्मॉल टीम, बट दे हैव बीन कम्पीटिंग इन द प्रीमियर लीग फॉर द लास्ट 4 years स्ट्रेट, या 5 years, 4 years आई थिंक. बट या नाउ दे हैव लॉस्ट देयर मैनेजर हु हैज़ बीन मैनेजिंग देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, थॉमस फ्रैंक. वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर थे क्लब के लिए. दे हैव ऑल्सो लॉस्ट ब्रायन एम्बूमो, जो कि मेन उनका आउटलेट रहे हैं गोल्स का ओवर द ईयर्स, अलॉन्ग विद व्हेन इवान टोनी व्हेन ही वेंट, ही टुक अप द मैंटल. उन्होंने संभाला है अटैकिंग प्राविस को टीम की, अलॉन्ग विद यूएन वीसा. बट ठीक है, ब्रायन एम्बूमो गए हैं, मैनेजर चले गए हैं, और उन्होंने मैनेजर अपनी ही हायरार्की में से अपॉइंट किया है. विद इन दे प्रमोटेड फ्रॉम विद इन, सो विच इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी इन फुटबॉल टुडे, एंड आई होप दे स्टे इन द लीग. सो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है ये, टू गेट द 3 points, जब वो वेस्ट हैम खेलेंगे. एंड वेस्ट हैम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट गेम है ये, बिकॉज दे हैव हैड अ हॉरेबल स्टार्ट टू द सीजन. वो they might be relegation contenders this season, and they really need the 3 points. And maybe
they get them from Brentford, but I hope Brentford wins, but it's going to be an interesting watch. So apart उसके बाद अगर हम बाकी लीग्स में देखते हैं, विल कम बैक टू लिवरपूल एंड यूनाइटेड द बिगेस्ट फिक्चर एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट ठीक है. उसके बाद अगर हम देखते हैं कि बार्सिलोना, बाहर की लीग में ला लीगा में देख लेते हैं, बार्सिलोना ऑल्सो कमिंग बैक ऑफ 2 लॉस्ट स्ट्रेट, सेविया एंड PSG वाले गेम में तो खैर दे गॉट आउट प्लेड इन द सेकेंड हाफ, बट सेविया मे बी अ गेम ऑफ मोमेंट्स, बट उसमें भी कई सारे मोमेंट्स थे जिसमें कि सेविया स्कोर कर सकती थी एंड स्कोर कुड हैव बीन हायर, बट ऑफ कोर्स बार्सिलोना आल्सो मिस द पेनल्टी जहाँ पे गेम टर्न हो सकता था, विच दे डिडंट कन्वर्ट. तो वो एक क्लोज गेम था, बट PSG वन वाज नॉट क्लोज. बट अब जो गेम आ रहा है इट्स रिलेटिवली ईजियर गेम, जिरोना के अगेंस्ट है वो, एंड दे शुड कम बैक, दे शुड गेट बैक टू विनिंग वेज. एंड रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड प्ले local derby against Getafe. So वो भी एक, it should be a usual weekend in La Liga where both the teams get their wins. But the following weekend is the El Clasico. And अगर चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग जाती हैं तो that brings Barcelona into the El Clasico under pressure because they would need a win. They had the lead. वो फर्स्ट ही आ रहे थे अभी पिछले गेम वीक से पहले, but they squandered the lead when they lost against Sevilla while Madrid won. जब मैड्रिड एटलेटिको से आ रही थी, Barca was back on the top place on the podium, on the pedestal, but they have squandered it now. And that अगर ये गेम वीक मैड्रिड के अकॉर्डिंग जाता है, that would bring Barcelona under pressure. तो that would be an interesting watch as well. Apart from that, मैड्रिड इस गेम वीक के बाद अभी जो खेलेगी वो हेताफे वाला लोकल डार्बी जो है, उसके बाद दे प्ले यूवेंटस जो कि इस सीज़न अनडिफीटेड रहे हैं इन द चैम्पियंस लीग का वीक ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे इन द चैम्पियंस लीग फिक्सचर्स, वाइल आर्सेनल प्ले एटलेटिको मैड्रिड. सो ये 2 गेम्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑल्सो द डे क्लासिकर इन बुंडेसलीगा. अगर आई डोंट नो वेयर टू वॉच इट, बट इफ समवन डज वॉच इट, it's going to be there. Bayern are leading the Bundesliga right now, while Dortmund are following closely on second. But Bayern has Harry Kane, who's probably going to win the Ballon d'Or if the World Cup goes slightly according to his wishes. But yeah, they have a madman leading the game. So, Liverpool versus United. Liverpool have not beaten Manchester United at Anfield for the last 2 years, which is crazy. Because when you talk about the two teams over the last 5 years, 7 years, you would think that Manchester United are off of it, far off. In quality, there's a huge gulf. There is, but when this fixture comes, the gulf is not that wide. Manchester United have been putting up great displays. Apart from the 7-0, अगर आप 23 में हटा देते हैं, उसे हटा दीजिए. That's an anomaly, of course. वो चीज़ रिपीट हो सकती है, but it's unlikely कि हो. आप उसे हटा दीजिए. उसके अलावा अगर आप FA कप वाला एग्जिट ले लेते हैं, वहाँ पर एक अपसेट मिला था लिवरपूल को. वो होम पर नहीं था, बट वहाँ एक अपसेट मिला था लिवरपूल को. उसके बाद अभी 2-2 जो ड्रॉ हुआ लास्ट सीजन, इट वॉज अ मैच वेयर लिवरपूल वर एक्सपेक्टेड टू विन ईजिली, बट दैट नॉट द केस. ठीक है, आप इंडिविजुअल एरर्स बोल सकते हैं किस तरह के, बट ठीक है, द रिजल्ट अगेन डिड नॉट कम. तो Liverpool have struggled a little against United, which of course it's a big game, so the struggle is expected, but hopefully that's not the case this time. Mo Salah should be a brilliant watch in this game. He is the highest scorer of this fixture in the Premier League's history, so hopefully he also gets off of his Premier League slump in this fixture. Apart from that, Liverpool have not been that bad. They're still the team with the most chances created from the open play, but it's not translating. And Arne Slot यही बोल रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम चांसेस तो बना रहे हैं, बट देन इट्स नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू विंस, बिकॉज कई बार हम सिली गोल्स कंसीड कर देते हैं कि सेट पीस के गोल्स हम कई बार कंसीड कर देते हैं. 9 गोल्स जो लिवरपूल ने कंसीड करें, उसमें से 40%, 4 गोल्स के आसपास, मतलब 9 का एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ 40% सेट पीस से आए हैं. कई बार काउंटर्स पे, बिकॉज टीम एडजस्ट हो रही है, मिडफील्ड की पोजीशंस डिफरेंट हैं, तो फास्ट ब्रेक्स पे टीम कॉट हो जाती है. तो ये थोड़ी सी टिंकरिंग लिवरपूल को करने की ज़रूरत है. बट ऐसा नहीं है कि, बट अ सिमिलर स्ट्रगल कैन बी सीन, मतलब अगेंस्ट यूनाइटेड, विद यूनाइटेड, कि वो भी अपनी टीम में टिंकरिंग कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कैसे खेलना है. कई बार स्ट्रगल कर जाते हैं, कई बार एक अंडरस्टैंडिंग लैक कर रही है. दे फाइंडिंग अ सिस्टम. दे आर बेटर देन लास्ट सीजन, बिकॉज लास्ट सीजन वॉज
वो तो अलग ही है, वो भी एक अनॉमली है, वो चीज़ रिपीट शायद नहीं होगी, बट दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ सिस्टम एंड लिवरपूल इज ट्राइंग टू डू दैट टू. Whoever does that quicker, whoever does that faster will win. Liverpool have the bigger names. They've also lacked अटैक में एक कंसिस्टेंसी लैक करी है लिवरपूल, जो कि आप कई बार जावी का आपने कोट सुना होगा जो वो बोलते हैं इनिएस्टा के बारे में, समटाइम्स आई न्यू वेयर ही वाज विदाउट इवन लुकिंग. तो वो एक फुटबॉल की काफ़ी मैं फंडामेंटल वैल्यू मानता हूँ कि किसी भी कोच को ये चीज़ अपनी टीम में कोच करनी चाहिए. ऑफ कोर्स ये आप उतने उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे जो जावी और इनिएस्टा करते थे, मैं वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, बट एक फंडामेंटल वैल्यू है कि टीम को पता होना चाहिए कि क्या चाहिए मेरे प्लेयर को, जो कि लिवरपूल थोड़ा स्ट्रगल कर रही है इस चीज़ में इस समय. जो कि एविडेंट है, आप जैसे कि एलिसन का मिस है. जब एलिसन जो अब गेम्स मिस करे उन्होंने, अगेंस्ट चेल्सी मिस करा या गैलेटासराय वाला उन्होंने जो जितना टाइम नहीं खेला उन्होंने, तो जब मोहम्मदाशवली आए ओवर द ईयर्स, जितने ईयर्स से लिवरपूल खेल रही है अभी एक फॉर्मिडेबल टीम होके, एक एस्टैब्लिश टीम होके 7 ईयर्स से 8 ईयर्स 9 ईयर्स से, तो आप देखते हैं कि लिवरपूल हमेशा एक राइट फुटेड गोलकीपर के साथ खेली है, चाहे वो एलिसन हो, चाहे वो आड्रियान हो, चाहे वो केलेहर हो. ये सब एक राइट फुटेड गोलकीपर्स हैं जिनके साथ इस डिफेंस को खेलने की आदत है कि इस तरह से इसको पास दिया जाता है गोलकीपर. तो ये भी एक स्ट्रगल है कि आप अडेप्ट करने में. जस्ट जो मोहम्मदाशवली हैं वो एक लेफ्ट फुटेड गोलकीपर है, तो ये टीम अभी समझने में थोड़ा सा टाइम या फिर एक इनिशियल हिकअप है कि गोलकीपर को कैसे पास करना है, जो कि एक स्ट्रगल दिखा था उन गेम्स में, जो कि उनकी फॉल्ट नहीं है मोहम्मदाशवली की, ये टीम की फॉल्ट है. या जो प्लेयर पास दे रहा है उसको पता होना चाहिए कि टीममेट को कहाँ पास चाहिए. बट आई गेस ये चीज़ आयन आउट हो जाएगी, इट्स नॉट गोना बी अ बिग इशू, ये चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी. इसी तरह की चीज़ें आप मिडफील्ड में देख सकते हैं. लिवरपूल को मिडफील्ड में थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी समझने में कि कौन प्लेयर कहाँ जाएगा, बिकॉज कई सारी बहुत ज़्यादा नई साइनिंग्स एक साथ हो गई हैं. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को पिच पे अपनी सही जगह ढूंढने में. जब लिवरपूल के पास एक फैब फोर था, फिलिप कुटिन्यो, साडियो माने, रॉबर्टो फर्मिनो और सलाह, तो उनको भी इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगता है टू फिगर आउट कि कौन कहाँ खेलेगा. देयर इज़ एक हायरार्की एस्टैब्लिश दी हो जाती है अटैकर्स में बिकॉज ऑफ ईगोज एंड ऑल. तो वो चीज़ यहाँ भी हो जानी चाहिए. दोनों ही टीम्स कई बार गोल्स लीक कर जाती हैं, यूनाइटेड और लिवरपूल, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन लैक्स या लैप्सेस कई तरह के. होपफुली वो हमें ना देखने मिले, गोल्स क्वालिटी से आए, बट या होपफुली लिवरपूल विंस. फाइनली अगर हम FPL की बात कर लें, विच इज़ समथिंग दैट ऑल्सो इज़ अ ग्रेट पार्ट ऑफ द प्रीमियर लीग, एटलीस्ट काफ़ी मज़ा आता है इस चीज़ में. तो कोल पामर जो चेल्सी के ओवर द लास्ट 2 ईयर्स एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहे, मे बी द सेंट्रल फिगर फोकल पॉइंट ऑफ चेल्सीज अटैक, वो 6 वीक्स और के लिए बाहर रहेंगे, विच ब्रिंग्स एंजो फर्नांडिस अर्जेंटीना के इनटू द लाइट. अब उन्हें एक अच्छा फिगर हो जाते हैं FPL पर्सपेक्टिव से एट हिज प्राइस, और जो वैल्यू वो ब्रिंग करते हैं उस प्राइस पे, कंसिडरिंग कि ही माइट बी ऑन पेनल्टीज़ और वो काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड गोल इन्वॉल्वमेंट्स रखते हैं नॉन पेनल्टी, शायद हाईएस्ट ही है उनका, तो वो एक अच्छे पिक हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर प्लेयर दैट आई थिंक आई वुड बी लुकिंग टुवर्ड्स इज डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन. वो एक आउटराइट पिक तो नहीं है, बट ही इज समवन दैट आई वुड लुक इनटू बिकॉज ऑफ हिज प्राइस एंड थिंग्स दैट ही एनेबल्स. वो एक मे बी ही इज समथिंग दैट आई वुड लुक इनटू. I'm also holding Semenyo as of now, but he has been an overperformer for XG for quite some time since the season has started. But उन्हें hold कर रहा हूँ. Similarly, Bruno Fernandes has been severely underperforming his expected goals involvement. He missed 2 penalties. अगर वही 2 penalties convert हो जाती तो narrative बिल्कुल flip हो जाता. It would have been an opposite of things, but that was not to be. वो नहीं हुआ, तो ठीक है आज. बट ही स्टिल आई थिंक ही इज़ समवन दैट यू शुड होल्ड. वो हमेशा गेम में इन्वॉल्व होंगे, अटैक में इन्वॉल्व होंगे, शॉट्स लेंगे, ऐसी पोजीशंस में आएंगे जहाँ वो पास दे पाएँ, की पासेस. और तो ही इज़ समवन हु इज़ गुड फ्रॉम द FPL पर्सपेक्टिव. मैं अपनी टीम यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके लगा दूंगा. आई एम होल्डिंग हालैंड, मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो मेरे कैप्टन हो अगेंस्ट एवर्टन. या सो आई गेस इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है. I will try to make
more of these, possibly every week, with every game week. I hope this goes well. This is something I'm really looking forward to.